symbol हो उनके पास. In fact, if he stands even as an independent, I'm sure he'll win. Right, and at the moment with us from the Congress Party, very very happy, Mr. Rakesh Shetty. Rakesh Shetty साहब नमस्कार. नमस्कार राजीव जी, प्रदीप जी नमस्कार. नमस्कार सर, नमस्कार. So Rakesh Shetty साहब, Priyanka ji from Wayanad and Rahul Gandhi from Raebareli. That is going to be something that will be worth seeing in the Lok Sabha. कि प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव, कनी मोजी, सुप्रिया सूले. What a gallery of greats for the opposition. Fantastic. Really and truly lovely. Could you tell us a bit about it? What are your thoughts on it? See, we are very happy that Priyanka Gandhi has been given this opportunity by party president Shri Mallikarjun Kharge, and we wanted her to contest the election, and it is good she has been selected Wayanad for her political career, and this is a great thing because we would love to hear more from her, and we would love to see her asking question to the government in the parliament. And as you have seen that she is a very balanced and very good leader. She will ask correct questions to the government, and hopefully government will reply to her questions in parliament. You know, Rahul Gandhi ji, Shetty Saab was very, very bullish, very happy. He said the India Alliance and the Congress has destroyed the idea of Modi. Idea of Modi was totally centric, Modi centric, Modi 1, Modi 2, Modi 3, Modi guarantee. Well, we have destroyed the idea of Modi. We have made Modi a Democrat. एक तानाशाह से उनको डेमोक्रेट बना दिया. आज मोदी साहब कॉन्स्टिट्यूशन के सामने माथा टेकता है, सर झुकाता है और इन ऑल इंक्लूसिव हो गया है. Well, this change in Modi is brought by the Congress. Rahul Gandhi said. How do you see that statement, Shetty साहब? See, हम लोग को ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी 1, मोदी 2 करेक्ट है, but this is not Modi 3.0. It is NDA 3.0 you can say, because नरेंद्र मोदी जी का जो सपना था भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट दिलाना चाह रहे थे और एनडीए को 400 पार का नारा दिया था, बट पीपल ऑफ दिस कंट्री हैज कंप्लीटली रिजेक्टेड हिम. लोगों ने उनको बता दिया कि आप हिंदू मुस्लिम के नफरत फैलाकर आप इस देश को राज्य नहीं कर सकते. ये बहुत ही पुराना स्टैंडर्ड है कि ब्रिटिश रूल में ये चलता था, डिवाइड एंड रूल, मगर आज ये नया भारत है और ये नरेंद्र मोदी जी की नफरत की राजनीति को रिजेक्ट करता है. राकेश शेट्टी साहब, एक पर्सनल सवाल है आपसे, व्यक्तिगत सवाल. पता नहीं आप उसका जवाब दे पाएंगे कि नहीं. सर, मंगलसूत्र सुरक्षित है ना? मंगलसूत्र भी सुरक्षित है और भैंस भी सुरक्षित है, वहीं बंधी हुई है ना? देखिए ये कोई लेके तो नहीं गया? नहीं, यही बात है कि मैं आज एक 2013 का नरेंद्र मोदी जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, जब किसी पत्रकार ने नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि वाजपेयी जी की जो सरकार थी तब बीफ एक्सपोर्ट ज़्यादा था और जब यूपीए 1 और 2 की सरकार थी तो वो कम था. तो नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि ये नरेंद्र मोदी जी का वर्ड है, उन्होंने ये कहा कि बीफ एक्सपोर्ट इसलिए ज़्यादा रहेगा क्योंकि बहुत सारे गाय उनके पास, वो कह रहे थे कि मेरे पास डेटा नहीं है मगर ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे गाय दूध देना बंद कर दिया, उसकी संख्या बढ़ चुकी होगी इसलिए वो हो चुका है. और उन्होंने खुद नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि आप किसी एक धर्म को बीफ एक्सपोर्ट से मत जोड़िए. मेरा खुद के दोस्त जो जैन धर्म से आते हैं वो भी बीफ एक्सपोर्ट करते, उनको भी जो कत्ल खाने है वो जैन लोग है. मतलब ये दिस आर द वर्ड्स ऑफ नरेंद्र मोदी. Sir, I agree with you because I remember a speech in which Mr. Narendra Modi mentioned पहले green revolution, फिर white revolution, दूध की, फिर pink, and then the pink revolution. This is something Mr. Modi himself has mentioned. ऐसा नहीं कि उन्होंने mention नहीं किया. तो ये अभी क्या हो गया मुझे मालूम नहीं है. It's a somewhat confusing strategy. As Pradeep ji and I were discussing the other day, whenever they are under pressure, like they were under pressure in Karnataka, they bring in Hindu Muslim in some form or the other, which is rather sad. In fact, so much so that the RSS had to intervene. Look at what Mohan Bhagwat ji said, look at what Mr. Ratan Sharda said and Indresh Kumar ji has said.
Yes, you were about to say something. Please go ahead. Yeah, see, and the change you can see the very next day. ताजुब की बात है, नरेंद्र मोदी जी पहले जो एनडीए का मीटिंग हुआ जी। उसमें हरा कलर का कपड़ा जैकेट पहनकर वो मीटिंग में आए. इट सेंड्स अ क्लियर मैसेज कि ये डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी नहीं चलेगी एंड ही इज डेमोक्रेटिक, और वो भी अभी वो पॉलिटिक्स आगे नहीं करेंगे, एक मैसेज जो देना चाह रहे थे. और ये मुझे लगता है अच्छी बात है कि आप देश के प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री को ये सब भाषण शोभा नहीं देते. अब मंगलसूत्र की बात करते हैं, मटन की बात करते हैं, लास्ट में मुजरा तक आप पहुंच गए. ये शोभा नहीं देता कि देश के प्रधानमंत्री इस तरीके का भाषा का उपयोग करें. मगर अभी हमने थोड़ा थोड़ा चेंजेस आपको मोदी जी का दिख रहा है. बहुत जल्द हम देखेंगे कि वो मुस्लिमों के घर पे भी जाएंगे, मस्जिद भी खुद जाएंगे, और वो देश में हारमनी बनाने का बड़ा चेहरा बनने वाला. तो शरीफ साहब, नाना पाटोले जी, बीजेपी का आलोचना है कि नाना पाटोले जी ने एक कांग्रेस के वर्कर से अपने पैर धुलाए. बोले लुक एट दिस इन कॉन्ट्रास्ट टू प्राइम मिनिस्टर मोदी. आप 13 सीट क्या जीत गए महाराष्ट्र में. यू बिकम वेरी एरोगेंट, योर लीडर्स हैव बिकम एब्सोल्युटली एरोगेंट. और मोदी जी कंजर्वेंसी वर्कर्स के पैर अपने हाथों से पानी डालकर धोता था. जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है उन पे फूल बरसाया राम मंदिर में. तो हाउ डू यू सी द बीजेपी का आलोचना? हैव योर लीडर्स बिकम एरोगेंट दैट आप कांग्रेस के वर्कर से अपने लीडर पैर धुलाता है? देखिए, इस देश में अगर किसी ने प्रोग्रेस किया है तो मुझे ऐसा लगता है नरेंद्र मोदी जी ने किया है. बिकॉज 2014 में जब ये कैंपेन शुरू किया तब वो कह रहे थे कि मैं चाय वाला हूँ. 2019 में जब कैंपेन किया तब कहा कि मैं चौकीदार हूँ. और 2024 का जब इलेक्शन कैंपेन था तब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं तो डायरेक्ट ऊपर से किसी प्रकट हुआ हूँ. और जहाँ तक ये नाना पटोले का स्टेटमेंट है या उनका जो बारे में भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, मेरे को लगता है बहुत ही इररिलेवेंट है. वो एग्जैक्टली क्या हुआ है पता नहीं है, उसका जवाब तो नाना पटोले जी देंगे. मगर इस देश में इतना बड़ा रेल दुर्घटना होती है और लोको वर्कर्स की इतनी कमी है. 17,000 पोस्टिंग खाली है इंडियन रेलवे में, जिसके कारण आप देखिए 10 साल में 1017 ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद इंडियन रेलवे का डेटा है. ये सबसे बड़ा प्रश्न होना चाहिए. और जो रेलवे मिनिस्टर है उनको रेल हादसे के वहां पे जाने का, गाड़ी में भी जा सकते थे मगर बाइक में जा रहे रेलवे मिनिस्टर, और उसका ध्यान रखा जा रहा है कि उसका रील जरूर बने. मतलब एज अ रेलवे मिनिस्टर यू कांट ब्लडी रन द रेलवेज प्रॉपरली, मगर यूट्यूब में रील बनाने के लिए आप बाइक से जा रहे और कोई कार्रवाई नहीं. इस देश में जब रेल हादसा होता था तब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री उन्होंने भी एक बार रेजिग्नेशन दिया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जब रेल माधवराव सिंधिया जी ने दिया था और नीतीश कुमार जी ने भी किया जी दिया था. तो जब आप लोग को अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आज आप रेलवे नहीं चला पा रहे, आप 17,000 लोको वर्कर्स को अपॉइंटमेंट नहीं दे पा रहे, मेडिकल और डेंटल के जो बच्चे 20 लाख बच्चे का नीट का एग्जाम आप कंडक्ट नहीं कर पा रहे. उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि करीबन 18 बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक के बाद एक पेपर लीक हुआ जी. और बहुत शर्म की बात है, नीट जो आप जानते कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है और इसके बाद इस देश के भविष्य के फ्यूचर डॉक्टर्स बन रहे, वहां पे धांधली, वहां पे पेपर आपका एक्सपोज होता था. पहले उत्तर प्रदेश में ही एक एफआईआर ऑलरेडी दर्ज है. उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर आके कहते कि कुछ घोटाला नहीं हुआ है. मतलब इट इज वेरी शॉकिंग. और इतने एक ही सेंटर में हरियाणा के अंदर 24 बच्चे को आपने ग्रेस मार्क दे दिया और 6 लोग जो हैं वो दे गॉट मैक्सिमम मार्क्स 720 आउट ऑफ 720. Yes. मतलब इन्होंने पूरा एजुकेशन सिस्टम का मजाक उड़ा दिया है जी. और आपको पता है कि भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर एक विद्यार्थी ने तो सुसाइड तक कर दिया रिजल्ट देखने के बाद. तो इसका जिम्मेदार कौन है? मतलब तो सर
वो जो मध्य प्रदेश का जो व्यापम स्कैम था उसके बारे में तो अभी तक कुछ आया ही नहीं है कोई, मतलब देखो, इस देश में अगर हमारी सरकार, इंडिया अलायंस की सरकार बनती तो व्यापन घोटाला भी बाहर आता, पीएम केयर्स में जो फंड आया वो भी घोटाला आता बाहर, राम मंदिर के लिए दुनिया भर से लोगों ने, भक्तों ने चंदा दिया, उसका किधर मिसयूज हुआ वो भी बाहर आता। मगर दुर्भाग्य है कुछ सीटें से हम कम रह गए, मगर मुझे नहीं लगता है कि एनडीए के इनके पार्टनर्स के साथ ज्यादा दिन चलेगा, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है नीतीश कुमार के But I'd ऊपर। like to ask you one thing. Because you mentioned the railway accident at Siliguri, Kanchenjunga Express and the goods train colliding with each other, or rather the goods train collided and rammed into the Kanchenjunga Express. सर पिछले साल जून के महीने में बंगाल में हुआ था ये। सर बालासोर में हुआ, ये तो बंगाल बालासोर। में हुआ, सिलीगुड़ी इट्स इन बंगाल, और इसके पिछले साल बालासोर में हुआ। That was horrible. It is the same railway minister, Mr. Ashwini Vaishnaw. सेम रेलवे मिनिस्टर, एंड उसके बाद उन्होंने एक डेमो भी दिखाया हाथ में 2 ट्रेन को रख के कि अभी हमने एक मैग्नेटिक सिस्टम लाया जी। कि एक ट्रेन के सामने दूसरा ट्रेन आएगा तो वो कोलाइड नहीं करेगा क्योंकि मैग्नेटिक सिस्टम लगाया। उन्होंने दावा किया था बाकायदा, उसके बोला बाद था कहा कवच कि कवच सिस्टम ऐसा कुछ करके था। कवच सिस्टम करके उसको नाम दे दिया, और उसको भी मैथोलॉजिकल नाम सब देने का काम करते हैं लोग, और कहा कि एक ट्रेन के पीछे गलती से ह्यूमन एरर के कारण पीछे भी ट्रेन आ गया तो भी वो कोलाइड नहीं करेगा, और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर वैष्णव जी को, क्या हुआ वो मैग्नेटिक कवच का आप बात कर रहे थे, क्यों वर्क नहीं किया, क्यों फेल हो गई? जिस तरह रेलवे फेल हो चुकी है, जिस तरह आपका एजुकेशन सिस्टम फेल हो रहा है, मुझे लगता है ये जो एनडीए है ये सरकारी फेल है और ये पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। But why are they not recruiting people in the railways? Sir, is there rumor that railways is about to be privatized and it is about to be handed over to a few people? Is that correct then? क्या ये बात ठीक है? सी आपको बताता हूँ, 2014 से पहले 2013 में आप देख लिए BSNL was a very well established और बहुत सारे कस्टमर्स थे इनके बीच। Yes. 2014 It had the Customer largest ground and air network in the country. Yes. एंड अगर आप, क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन से संबंधित हूँ, मैं इनके जो प्रोटेस्ट में लगातार जाता था, उनका साथ देता था। 2014 से 19 के बीच में जब रिलायंस को आपको और एयरटेल को 4G का लाइसेंस दिया गया, तब गवर्नमेंट ने अपना ओन BSNL को लाइसेंस नहीं दिया, उनको कहा कि आप 2G चलाओ। 2G चलाओ। They were not allowed to bid. They were not allowed to participate in the bidding process. करेक्ट। एंड जबकि आज जो BSNL के टावर्स है उस पे एयरटेल और रिलायंस के जी सिस्टम लगा हुआ है। दे आर यूजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ BSNL नॉमिनल रेंट देकर, और BSNL जो गवर्नमेंट का कंपनी है उसका सर्विस इतना कम कर दिया। आज आपके पास ऑफिसर्स में 10 साल पहले MTNL रहेगा, आज आपके पास नहीं रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। MTNL को सिस्टमेटिकली बंद करने का कगार पे लेके आए, क्योंकि आपको सर्विस इतना खराब दे देंगे कि आप भी बोलोगे यार घटिया है, सरकारी कंपनी प्राइवेट हो। It's already shut, it's gone. Nobody uses MTNL anymore. Nobody uses MTNL. But over here, I'd like to inform our viewers. This is राकेश शेट्टी साहब ने जो BSNL की बात करी है, मैं ये कितनी बार पहले भी यहाँ पे बोल चुका हूँ। आप लोगों को याद होगा कि BSNL की जो यूनियन थी, when they were fighting for their salaries and when they were fighting for bonuses etc. We had them all over here on the show. मैं अपने दर्शकों को बता दूं, शेट्टी साहब को तो मालूम ही होगा कि जब जिन इलाकों में कोई जाने को तैयार नहीं था, जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, जैसे नॉर्थ ईस्ट है, जैसे नक्सलवाद से ग्रस्त इलाके हैं, वहाँ यही BSNL के इंजीनियर्स गए, उन्होंने अपने कम्युनिकेशन टावर्स लगाए, कोई प्राइवेट प्लेयर वहाँ पर जाने को तैयार नहीं था। आज की तारीख में इस नेटवर्क को बड़े प्यार से हैंड ओवर कर दिया गया है प्राइवेट प्लेयर्स को। Now, don't you think that's unfair, शेट्टी साहब? नहीं, ये तो देखिए कि जब आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो व्यापारी बन चुका है और वो अपने दोस्तों को फायदा देने का तय कर चुका है, इसलिए वो हम कहते हैं कि चंदा लो और धंधा लो। ये वो मॉडल है जहाँ पे जो लोग ने चंदा दिया उनको धंधा तो देना पड़ेगा, और धंधा क्रिएट क्यों करे? सरकार का चलती गिलती जो कंपनियां है उसको लॉस बनाओ,
उसका कस्टमर सर्विस इतना बुरा बना दो कि कस्टमर कल बोल देगा जब प्राइवेट हो जाएगा, नहीं बढ़िया हो गया, प्राइवेट हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट चला नहीं पा रही थी और सर्विस खराब था। तो क्या यही रेलवे के साथ किया जा रहा है सर? तो रेलवे का आप देखिए कैंटीन में खाना कितना कम है, और आज लोकल ट्रेन्स बढ़ नहीं रहे। आज जितने भी लोगों को अपने नेटिव प्लेसेस जाना है, तो जो स्लीपर क्लास है उसका हालत आप देखिए, एसी में घुस जा रहे। वंदे भारत के अंदर भीड़ आ गई। ये भीड़ क्यों आ रही है? वैष्णो जी कुछ दिन से पहले कह रहे थे कि पुलिसों को आके उनको मारना चाहिए। क्यों मारना चाहिए उनको? उनका क्या गलती है? जब आप लोग निकम्मे हो और आप लोग बोगीस नहीं बढ़ा रहे हो, ट्रेन नहीं बढ़ा रहे हो। वंदे भारत एक चलता है, राजू जी मैं आपको डेटा दे रहा हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ। एक वंदे भारत ट्रेन चाह रहा है तो 10 ट्रेन का टाइमिंग बदल देते हैं। इट इफेक्ट्स 10 ट्रेन, नॉर्मल ट्रेन। तो आप समझिए कितना नुकसान हो रहा है। आजकल वंदे भारत के अंदर जो भीड़ का आपने भी तस्वीर देखा होगा जी, ये इनकैपेबिलिटी ऑफ दिस गवर्नमेंट है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक द मुंबई लोकल ट्रेन। दैट व्हाट। और आप देखिए जो ट्रेन है जी, इससे ये सबसे चीपेस्ट वे टू ट्रैवल है। आपको कहीं पे भी जाना होगा, आजकल सभी लोग फ्लाइट्स लेते, बट बाकी मैक्सिमम 80% जनता के लिए ट्रेन ही है, उसी से वो ट्रैवल करते। और अगर वो भी सिस्टम आप बराबर से नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या बात कर रहे हो बुलेट ट्रेन और बाकी सारी चीजें की। आपको मैं बताता हूं कि गवर्नमेंट अगर ये लोग 370 आए होते, 400 पार हुआ होता, तो अभी तक तो मुझे लगता है इंडियन रेलवे को भी अदानी साहब को हैंड ओवर कर दिया होता है। शेट्टी साहब, आज कांग्रेस गारंटी, द कांग्रेस गारंटी इन कर्नाटका, यू हैव केप्ट इट। शक्ति का एक साल 5,500 करोड़ यू स्पेंड ऑन फ्री वुमेन राइट्स। वुमेन को आपने जो वादा किया था वो कर दिया। आपने जो डिप्लोमा होल्डर्स है उनको भी पैसा, या जो अनएम्प्लॉयड है उनको पैसा देना शुरू कर दिया। पेंशन। Yes, you have done that. आपने वो प्रॉमिस फुलफिल कर दिया। बट बीजेपी सेज दैट व्हाट, आपने ये कर दिया, दूसरी जगह पेट्रोल डीजल का प्राइसेस आपने हाइक कर दिया। तो कौन सा कांग्रेस गारंटी की बात कर रहे हो? जैसे यू हैव कॉम्पेंसेटेड देयर, यू हैव डन अ गुड एक्ट देयर, बट यू हैव इंक्रीज्ड द फ्यूल, द पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस। शरीफ साहब देखिए, स्टेट गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी सरकार का एक मंसूबा हमेशा होता है कि जो अगर अपोजिशन में स्टेट गवर्नमेंट है तो इनका सरकार को कैसे डिसलॉज करे। जैसे आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का जब सरकार था, 3-3 महीने तक हमें जीएसटी का जो पैसा हमने भेजा सेंटर को, हमको रिटर्न नहीं आता था। आज सेम प्रॉब्लम कर्नाटका में है। कर्नाटका के सरकार के ऊपर दबाव लाना जा रहा है, उनके एमएलएस के ऊपर दबाव लाते हैं, और ये देखते हैं भारतीय जनता पार्टी कि राज्य सरकार बराबर से चले नहीं और इनको पेमेंट पे डिले होता है। तो ये जो कुछ भी पैसा, जैसे कि आप कह रहे कि पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा है 1 रुपया या कुछ, तो ये जो बढ़ा है वो स्टेट गवर्नमेंट का प्रोरोगेटिव है कि वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि स्टेट चलाना है उनको। और जो भी गारंटीज राहुल गांधी ने दिया हो या कांग्रेस पार्टी ने दिया है, वो हम लोग ने लोगों से वादा किया और उनको हमने दिया है, और वो कमिटमेंट हमारा लोगों से है। आज भी जब हमारी कैंपेन चल रहा था, राहुल गांधी ने सीरीज ऑफ मीटिंग इकोनॉमिस्ट से, लोगों से बात करके 8,000 रुपया पर मंथ महिला और जो युवा जो ग्रेजुएट हो गए उनको वादा किया था, क्योंकि राहुल जी वही वादा करते जो वो डिलीवरी कर सकते। और आपने देखा होगा कि जहां जहां पे हमारा हिमाचल प्रदेश में सरकार आई, कर्नाटका में आई, तेलंगाना में आई, महिलाओं को फ्री बस सर्विसेज बोला था तो दिया है हमने। हम नरेंद्र मोदी जी जैसे नहीं करते कि आपका इनकम डबल होगा ऐसा कहते, और जो यूरिया का भाव जो पहले 900 रुपया था उसको आज उन्होंने 1800 पे ले गए। हम ऐसा काम नहीं करते, झूठा वादा नहीं करते। जो आरएसएस, शेट्टी साहब, द आरएसएस अल्टीमेटली इज टॉकिंग योर लैंग्वेज। आप हमेशा कह रहे हैं कि मणिपुर मणिपुर मणिपुर। आज मोहन भागवत जी ने 2 दिन पहले वही कहा कि आपका कर्तव्य बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि मणिपुर की तरफ आप ध्यान दें। He talked about the low discourse of political जो expediency. He talked about
द टोटलिटेरियन तरीके से मैं जो कहा, मतलब वी आर इन ए डेमोक्रेसी, यू कांट डू। तो मोहन भागवत जी, उसके बाद ऑर्गेनाइजर, उसके बाद वेरियस आरएसएस पीपल टॉकिंग अबाउट इंद्रेश कुमार जी। तो हाउ डू यू सी दैट, इतना खुलेआम आरएसएस मोदी जी का आलोचना करना ओपनली? देखिए, अगर मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने जब पार्टी को तो इंटरनली कहा ही था, मगर देश की जनता को कहा था कि कॉन्फिडेंटली कि उन्होंने जितना 10 साल में काम किया तो हमको 370 सीट मिलेगा, और आप वो नंबर्स अचीव नहीं कर पाए। इतना है कि आप 272 जो मेजॉरिटी है, जो आपको अपने आप पे आप सरकार तक नहीं बना पा रहे, तो ये जो आपके 63 सीट्स कम हुए, तो लिटरली देश की जनता ने आपको रिजेक्ट किया है। और मोहन भागवत जी यही कह रहे हैं कि दूसरा कोई अगर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हुआ होता तो इतना बुरा हार होने के बाद आपको आपके पद से आपको पद छोड़ देना चाहिए था, मगर क्योंकि नरेंद्र मोदी जी एडमेंट और वो अपना पद नहीं छोड़ रहे, इसलिए उनको बाहर आकर ये कहा उन्होंने कि व्यक्ति को, जो आदमी अपने को सेवक कहता है, उसको घमंड नहीं करना चाहिए। उन्होंने एक क्लियर स्टेटमेंट दिया। और जहां तक मणिपुर का, मेरे को तो मोहन भागवत जी से ये पूछना है आपके चैनल के माध्यम से कि 1 साल पहले का इंसिडेंट है और आज भी मणिपुर में हिंसा चालू है, तो 1 साल से आप क्यों चुप बैठे थे? जब तक सत्ता थी तो आप उसके मजे लूट रहे थे, आप चुपचाप बैठे थे, नरेंद्र मोदी के गुणगान गा रहे थे। आज नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने, महाराष्ट्र के लोगों ने, खुद अयोध्या के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, तब आप बात कर रहे हैं ये चीज। अगर मोहन भागवत जी 1 साल पहले मणिपुर की बात करते तो मुझे लगता है कि वहां की सरकार भी आ जाती, एक्टिव हो जाती, और बहुत सारे महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार मणिपुर में हो रहा था वो रुक जाता। लेकिन अजीबोगरीब बात है राकेश शेट्टी साहब कि मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह जी विराजमान है, उनको तो कोई कुछ भी नहीं हुआ। मैं यही कहने जा रहा था कि वीरेंद्र सिंह जी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस कमिश्नर के ऊपर कार्रवाई, मतलब पुलिस स्टेशन को लोग आके लूट कर आपके पूरा आर्म्स एम्युनिशन लेके जाते, उस कमिश्नर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, उस सीएम के ऊपर कार्रवाई नहीं, मतलब कितना बड़ा। और चीफ मिनिस्टर वीरेंद्र सिंह इतना आके कहते, जब वो वीडियो क्लिप हमने देखा, 2 महिलाओं को पुलिस वैन से उतारा गया, निर्वस्त्र करके रेप करके जलाया गया, तब वो कहते एक क्लिप आपके पास आया, ऐसे तो 100 एफआईआर दर्ज है। मतलब ही सो ओपनली वो ये कह रहे, इसका मतलब इतना सारा चीज होने के बाद भी मुख्यमंत्री एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रेजिग्नेशन तक नहीं करता है। इसका कारण है कि आज रेलवे में इतना हादसा होने के बाद भी रेल मंत्री भी कोई रेजिग्नेशन की बात नहीं करता। ये गलत बात है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, और अगर आपके देखरेख के अंदर कुछ भी इतना बड़ा हादसा होता है तो आपको पद से छोड़ देना चाहिए। आपको मैं याद दिला दूं, यूपीए 1 और 2 में सिर्फ हमारे नेताओं के ऊपर आरोप लगता था, मीडिया संशय उठाती थी, तब हमारे मुख्यमंत्री हो या यूनियन मिनिस्टर हो या अजित दादा पवार हो या अशोक चौहान हो, सबसे हमने रेजिग्नेशन लिया है। सर वही नहीं है, आप जरा भूल रहे हैं। हमारे पवन बंसल साहब आपके रेलवे मिनिस्टर थे, उनके नेफ्यू ने फोन यूज कर लिया, ऑफिशियल फोन, उसके बेसिस के ऊपर पवन बंसल साहब का रेजिग्नेशन ले लिया गया था, याद है मुझको। हाँ, देखिए ये मैं कुछ बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो जिम्मेदारी है, कांग्रेस पार्टी की भी ये जिम्मेदारी है। अगर आपके मंत्रियों के ऊपर आरोप लगते, विदाउट बीइंग प्रूव्ड हमने लोगों से रेजिग्नेशन देने को लगाया। इसका कारण ये था कि लोगों के मन में विश्वास रहे सरकार की तरफ, और लोगों को ये ना लगे कि वो व्यक्ति उस पद पर बैठकर मिसयूज करे। और आपको याद होगा आदर्श घोटाला में भी अशोक चौहान जी का नाम जैसे आया था, ही वॉज आस्क्ड टू रिजाइन। विलासराव देशमुख जी ने राम गोपाल वर्मा को लेके गए थे ताज में 26/11 के बाद। हाँ, तो उनका रेजिग्नेशन करवाया था। ए राजा देखो, उनका जब मिनिस्ट्री पे आरोप लगा 2G का, बाद में तो कोर्ट ने कहा कि दिस आर ऑल स्पेकुलेशन एंड ये नंबर सब फेक है, तो वो भी उनको भी उस समय पे रेजिग्नेशन दिया गया। This is very funny. I would like to ask you this. In 2G scam, all the people who were arrested in the so-called scam,
They were all released. They were arrested in the 2G scam when Dr. Manmohan Singh was in power. As soon as Mr. Modi comes to power, they're all released. So what's going on here? See, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब 2014 तक ये लोग ने रेजिग्नेशन किया, they were sent behind bars, but 14 से 19 के बीच में सब लोग निर्दोष मुक्त हो गए और अभी तक बाहर है, और अभी तक बाहर है। नहीं, उसमें से बहुत सारे केस के फैसले आ गए जी, और उनको निर्दोष मुक्त किया। आपको बता दूं, ऐसे आपके जानकारी के लिए, जैसे प्रफुल्ल पटेल जब महाविकास आघाड़ी के साथ थे तो दाऊद इकबाल मिर्ची से उनका लिंक होता है, उनका प्रॉपर्टी अटैच हो जाता है ये वर्ली में सीजे हाउस, और परसों के दिन में मैं पढ़ रहा हूँ 180 करोड़ की प्रॉपर्टी उनका छोड़ दिया ईडी ने और उनको हैंड ओवर कर दिया इतना जल्दी। दिस आर ऑल सरप्राइजिंग मिसयूज ऑफ एजेंसीज। यही सारा चीज नरेंद्र मोदी जी को बारी गिरा। और Has he changed? शेट्टी साहब, has Prime Minister Modi changed? Modi 3.0, सबका साथ सबका विश्वास। मोदी जी का कहना है, बोले कि देखो 72 मिनिस्टर्स हमने बनाया, उसमें ओबीसी 27, शेड्यूल कास्ट 10, शेड्यूल ट्राइब 5, माइनॉरिटीज 5, वुमन 7। ना एक एक चीज वो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स जो बोल रहे, सबको इंक्लूड करने वाले। हाउ यू थिंक, इज दिस चेंज, और इसको कैसे डिफाइन करते हो आप? देखिए, नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में खड़ा होकर ये कहते हैं मैं तो कोई जात नहीं मानता, एक अमीर है, एक गरीब है, एक किसान है। मतलब नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अब जब जनता विश्वास करना बंद कर दिया, क्योंकि यही जनता है जिन्होंने इनको एक बार 303 सीट दिया था, आज इनको क्लियर मैंडेट भी नहीं दे रही है। जब जनता, बिकॉज क्या हुआ 19 से 23 के बीच में नरेंद्र मोदी जी ने जो भी वादा किया उसका उल्टा काम किया। मंदिर में जाके माथा टेकते और बीफ कंपनी से चंदा लेना, 2,500 करोड़ 32 कंपनी से लिया, वो कंपनी से जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई के केसेस थे, और जितने विरोधक है जिनके ऊपर आरोप लगाते थे उनको किसी को राज्यसभा भेज दिया, किसी को डिप्टी सीएम बनाया। ये जनता के बीच में आ गया। एंड थैंक्स टू चैनल्स लाइक नेशन नाउ कि आप लोग ने एक क्लियर कट, आप लोग बायस नहीं थे, आप लोग ये जनता के बीच में जो भी मुद्दे थे, राजीव जी हो या प्रदीप जी हो, आप लोगों के बीच में लेके गए। इसलिए मैं आज देख रहा था कि कुछ आज चैनल, राइट विंग चैनल जिनको हम कह सकते हैं अभी, वो लोग बैठ के एनालिसिस कर रहे थे कि सोशल मीडिया में जो अलग चैनल्स है, रविश कुमार जी हो या एक 4PM हो या आप जैसे चैनल्स है, इनके इतने सब्सक्राइबर क्यों बढ़ गए? क्योंकि आप लोगों ने हमेशा सरकार से सवाल पूछा है, सरकार को क्वेश्चन आईना दिखाने का काम किया आप लोगों ने। राकेश शेट्टी साहब, चलते चलते अब ये भी बता दें, महाराष्ट्र में आपकी परफॉर्मेंस, प्रदर्शन आपका बहुत ज़बरदस्त रहा है। आपने भारतीय जनता पार्टी को 23 से 9 सीट पर आप ले आए। कांग्रेस हैज़ कम बैक एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन महाराष्ट्र वंस अगेन। अब विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं सर, उसकी क्या तैयारी? देखिए, विधानसभा का जहाँ तक सवाल है, आप अभी अगर आप देखते हो नंबर्स, तो अभी जिस हिसाब से लोकसभा का अगर इलेक्शन और उसी को पकड़ के अगर आप चलोगे तो इंडिया अलायंस को 180 से ऊपर सीट्स मिल रही। तो हमारा क्लियर कट मेजॉरिटी तो हमारा आ जाएगा इंडिया अलायंस का। और मुझे जो नरेंद्र मोदी जी ने जैसा प्रधानमंत्री बने उस दिन से उनका परफॉर्मेंस देखिए, पहले नीट घोटाला आ गया, आज रेलवे हादसा हो गया, और आगे आने वाले दिनों में इनके बहुत सारे भ्रष्टाचार है जो ऐसे ही बाहर आए। और महाराष्ट्र में तो अभी आरक्षण की बहुत लड़ाई चल रही है सर। एक तरफ जरंगे पाटिल साहब हैं, दूसरी तरफ वो VJNT के लीडर हैं, वंचित जाति नोमैडिक ट्राइब लक्ष्मण हाके साहब, वो भी बढ़ गए हैं अब हंगर स्ट्राइक पे। तो एवरीथिंग इज काइंड ऑफ वार्मिंग अप। हाँ, ये चीज़ है। और मगर आपको ये समझना पड़ेगा कि देवेंद्र फडणवीस जी जो है वो नरेंद्र मोदी जी जैसे डिवाइड एंड रूल करते, वो भी जाति समीकरण में हमेशा वो बात करते हैं और हमेशा लोगों को कास्ट के तरफ से वो तोड़ने का काम करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो आंदोलन हम देख रहे, जरांगे पाटिल जी का तो हमको पता है कि बहुत समय से वो मांग कर रहे हैं मराठा का, वो कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया था।
मगर इंडिया अलायंस इज कमिटेड कि जब भी हमारी सत्ता महाराष्ट्र में आएगी तो हम इसका सोल्यूशन देंगे। और मगर जब तक केंद्र में सरकार नहीं आती, क्योंकि आज वो 50% का जो स्लैब है जी। उसको हटाना पड़ेगा और उसके लिए आपको केंद्र सरकार के हाथ में है। जैसे वो लोग ने स्लैब हटा देंगे वैसे वो कर सकते हैं। इसलिए राहुल जी जो बात कर रहे हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए, इट इज अ सोल्यूशन। वो जैसा होगा तो लोगों को क्लियर पिक्चर Plus a आ जाएगा। constitutional amendment removing the 50% slab given by the Supreme Court. नॉट That ओनली दैट, most मैं important. आपको एक और बात बताना चाह रहा हूँ जाते जाते। ये 10 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उन्होंने अभी तक जनगणना नहीं किया जो जी। लास्ट 2011 में हुआ था। और उसका डेटा भी रिलीज नहीं किया सर। डेटा भी रिलीज नहीं कर रहे, मतलब इतना इनकॉम्पिटेंसी, और फिर भी गोदी मीडिया उनकी वाहवाही कर रही है। मतलब आप एक जनगणना नहीं कर पा रहे। And by the way, before you go, I really would like to ask you this. सीतामढ़ी के जो एमपी हैं जेडीयू साहब, वो कहते हैं कि मुसलमानों और यादव का मैं कोई काम नहीं करूंगा, पब्लिकली बोलते हैं। इन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, मुसलमानों और यादवों का मैं कोई काम नहीं करूंगा। Isn't that a fit case for disqualification? बिल्कुल। और इलेक्शन कमीशन हो या कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ओपनली ऑन द बेस्ड ऑफ कास्ट क्रीड आप करते जी। हो तो डिस्क्वालिफिकेशन के एम्बिट पे आप आ जाते हो, और बिल्कुल करना चाहिए। But over here, my question is something else. My question is somewhat different. ये तो इन्होंने कहा है इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी होगी, but there were a couple of channels, by the way, which I was watching yesterday, late night. The anchors were asking the समाजवादी पार्टी कि आप भी तो एमवाई की पॉलिटिक्स करते हैं ना, मुसलमान यादव की। अरे यार, आपको मालूम नहीं है कि ऑफिशियली आदमी सबके सामने ये बोल रहा है कि मैं मुसलमानों और यादवों का काम नहीं करूंगा। ही इज द एमपी इलेक्ट। जो आप इलेक्शन कैंपेन में कहते हैं दैट इज सेपरेट। डोंट दीज गाइज इवन हैव दैट सेंस और व्हाट हैज हैपेंड टू आवर मीडिया? राकेश शेट्टी साहब, जब इस देश का मुखिया ओपनली अगर मुसलमानों को लिंक कर लेता है, मस्जिद, मछली, मुजरा, ये सब कहता है, तो उनके जो मिनिस्टर्स है वो भी ये बात करेंगे, उनके एमपीज जो है वो भी यही बात करेंगे। आप याद करिए कि जब एक स्टेटमेंट बाला साहेब ठाकरे जी ने दिया था, इलेक्शन कमीशन ने उनको वोट डालने से मना कर दिया। he was banned from casting his vote. तो आपको नहीं लगता है जेडीयू का सांसद का पद ही डिस्क्वालीफाई होना He should चाहिए? be disqualified. There should be fresh elections there. And जब for, बाला साहेब ठाकरे के ऊपर आप इतना बड़ा कार्रवाई कर सकते, जी। तो ये जेडीयू सांसद के ऊपर क्यों नहीं हो रहा? दिस इज अ $1 million क्वेश्चन। Fadnavis is very confident. Dev Fadnavis is रहा कि महायुति और एनडीए के डिफरेंस सिर्फ 1% है. Only 1%. We'll bridge the gap and we'll win again. Do you think it's so easy? Equations. भारतीय जनता पार्टी को देश में नरेंद्र मोदी ने डुबाया और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का कॉन्फिडेंस ही डुबाएगा, क्योंकि जनता ने इनको क्लियर मैसेज दिया है और इनका ओवर कॉन्फिडेंस ही इनको डुबाएगा। धन्यवाद सर। Right, thank you so much, sir. Thank you very much. Thank you. Namaskar, Jai Hind, sir. Well, but this is the first time I'm more disturbed by the way. I'm not so disturbed about what the JDU MP said, which is also very disturbing. I'm more disturbed. Are these guys ignoramuses? Are they idiots? Are they dim-witted dunderheads? Are they illiterate? Or do they do this deliberately? I don't Or understand they've this. been told to do it. I mean, it's shocking. And some people have been told to do it. It's absolutely shocking. How can you compare the statement of an MP elect saying that he will not work for these two communities with whatever be the election campaign that may have been carried out by the Samajwadi Party? I'm absolutely dumbfounded. I have never seen this kind of journalism ever before, but then I've grown old, so that's what happens. That's what happened. It's shocking, absolutely shocking. I hope to God there will be a return to sanity now, and there will be some balanced reportage for everything. That's it. Well, that's it. That's just about it for tonight's show. आज के show में सिर्फ इतना ही from both Pradeep ji and myself. Thank you very much for watching. और do subscribe to the channel. Channel को subscribe जरूर करें. And you heard that
यू हर्ड दैट? The Irish clock. That strikes वो the- घंटी जो बज गई है प्रदीप जी की आयरिश क्लॉक, आप जरा सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को. वील ऑफ कोर्स बी बैक विद यू टुमारो एंड कीप वाचिंग नेशन नाउ. आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, Vande Mataram. जय सिया राम, हर हर महादेव. Har Har Mahadev.